Hello everyone. Today we are going to study graphical representation of data. So presentation of data is generally done in two ways. हम दो तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं. डेटा मतलब जो भी रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया है विथ योर सैम्पल्स, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन योर रिसर्च स्टडी. सो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इज़ डन इन टू वेज. हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. वन इज़ in the tabular presentation and second is in the graphical representation. So tabular presentation is something when you represent your data in the tables. जब आप tables या tabular form में जब आप figures को tables में डालते हो and through that when you represent your data, that is tabular representation. And second is graphical representation. Graphical representation is something when you use pictures, graph, diagrams to represent your data, that is graphical representation of data. सो जो टैबलर फॉर्म में जो डेटा होंगे दैट विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो विल अलाउ यू फॉर फर्दर एनालिसिस. बट वॉट हैपन हियर इज दिस फिगर्स जो नंबर्स होते हैं टैबलर फॉर्म में इट इज़ नॉट ईजली अंडरस्टूड बाई एवरी वन एक्सेप्ट द रिसर्चर. रिसर्चर को छोड़ के बाकी हर कोई उसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. सो हैंस द रिसर्चर प्रेफर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच इज़ ईजली अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सो जैसा कि आप लोग को ही पता है कि जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं टेबल्स में दे विल मेक आई स्ट्रेन. जैसा कि लाइक अभी अगर मेरे को डेटा रिप्रेजेंट करना है सो आई हैव अ नंबर ऑफ सैम्पल्स. लाइक आई हैव लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स 30, 40, 100 और 500 नंबर ऑफ सैम्पल्स आई एम हैविंग. सो इफ़ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट देयर डेटा, मैं अगर उसको टैबलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो जस्ट इमेजिन कि हाउ दैट टेबल विल लुक ऑफ 100 सैम्पल्स ऑफ डेटा. सो इट विल डेफिनेटली कॉज आई स्ट्रेन एंड देर आर चांसेस ऑफ पुअर विजुअल impression of data present in tabular form. So in such case, in such circumstances, data can be presented in the form of pictures, diagrams or figures which will help in good comparison, also which will give a good visual impression. So hence graph और जो भी pictures होते हैं they are of utmost importance in this research subject. So starting with the introduction of this topic, the transformation of data through visual method like graph, diagrams, maps and charts is called representation of data. So when you are representing your data, raw data in something पिक्चर फॉर्म, अगर आप पिक्चर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो सो दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सेकेंड, visualization techniques are ways of creating and manipulating graphical representation of data. Ultimately, you are creating and manipulating the data in visualizing method. Next, we use this representation in order to gain better insight and understanding of the problem. Ultimately, जैसा आप लोग को भी मालूम है कि जो इंसान होता है वो देख के चीज़ों को जिस तरीके से परसीव करता है वो उसकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है एज़ कम्पेयर थ्रू एनी अदर सेंसेस. बाकी और भी कोई सेंसेस से अगर वो चीज़ों को सीख रहा है दैट मीन्स वो उतना उसको ध्यान में नहीं रहेगा जितना वो देख के सीखता है. तो अल्टीमेटली वो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि we use this representation in order to gain better insight and understanding of the problem. So वो देख के हमको एक इमेज के पीछे का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं वो सारी चीज़ हमको देख के समझ आ जाती है. So we will get a better insight through a image. And last, pictures can convey an overall message much better than a list of numbers. So ultimately, if I am showing a picture to you, it will convey thousands of messages, thousands of interpretation rather than just going into a list of numbers in tabular form. So it is the introduction of graphical representation of data. Coming to the meaning, so first is a picture is said to be more effective than words for describing a particular thing. So जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया कि a person perceives through seeing, he perceives more than any other senses. So a picture is said to be more effective than words. अगर आप descriptive way में जा रहे हो, अगर आप tabular form में जा रहे हो तो it won't be that much effective than an image. Next, a image representation is the geometric image of a set of data. अल्टीमेटली जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है वो मेरे डेटा का किया है, तो वो डेटा के पीछे के जो फिगर्स होंगे, जो भी फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए होंगे, तो वो एक ज्योमेट्रिक
आपको इमेज मिलेगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ मैथमेटिकल पिक्चर। मैथमेटिकल पिक्चर बोलने से इसमें फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलास अप्लाई होते हैं, पर्टिकुलर कुछ भी आप ग्राफ बना रहे हो तो वो सारी चीज़ें एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है अपने ग्राफ को। नेक्स्ट, इट इनेबल्स अस टू थिंक अबाउट अ स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम इन विजुअल टर्म्स। हम एक इमेज को देख के उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम विजुअल टर्म्स में बता सकते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है जनरलाइज करना। नेक्स्ट, इट इज़ एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक डिवाइस फॉर द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा। सो अल्टीमेटली इट इज़ इफेक्टिव, जैसा कि आपको मालूम है, थ्रू पिक्चर यू कैन स्टडी मोर, यू कैन लर्न मोर। इट इज़ इकोनॉमिक भी, क्योंकि इसको ईजी होता बनाना। ऑल्सो बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिसर्च स्टडी। अगर आप एक इमेज के थ्रू एक रिसर्च स्टडी का इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हो, मतलब दैट मीन्स दैट इमेज इज इफेक्टिव दो। Coming to the importance, it is used to make the data understandable to common man. Ultimately गोल यही है कि इमेज के थ्रू हम अपना जो इंटरप्रिटेशन है, डेटा का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम सबको ईजिली अंडरस्टैंड करवा पाएँ। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ईजी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, सेम पॉइंट एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन। नेक्स्ट, डेटा डिस्प्लेड इन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेमोराइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, सेम चीज़ जो आप देख के सीख रहे हो। And last, it can be compared at a glance. If you have, for example, population का सेंसस ही ले लो आप, अगर आपके पास दो इमेज है, 5 साल पहले का निकाल लो और अब का निकाल लो, तो यू कैन गो थ्रू बोथ द इमेज एंड यू कैन कंपेयर। आप वो सिर्फ ग्राफ को देख के कंपेयर कर सकते हो बहुत ईजिली कि 5 साल पहले डेथ रेट कैसा था, मोर्टालिटी रेट कैसा था, वो सारी चीज़ें कैसी थी, बर्थ रेट कैसा था, वो सब आपको पता चल जाएगा। एंड सेम थिंग हियर ऑल्सो। सो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे very easily. Coming to the need, why we need to graphically represent data. So graphics such as maps, graph and diagrams are used to represent large volume of data. Ultimately मैं एक या दो सैम्पल्स का डेटा नहीं रिप्रेजेंट करूँगी अपने रिसर्च में, मैं पूरे जो मेरे सैम्पल्स है, लाइक 100 सैम्पल्स है, तो वो सारों का मैं एक पर्टिकुलर ग्राफ में या एक पर्टिकुलर डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगी। Second, if the information is presented in tabular form or in a descriptive record, it becomes difficult to draw result. So ultimately ऐसा होता है कि अगर आप tabular form में या descriptive form में चीज़ों को explain करने की कोशिश करोगे तो you won't be that much successful. आप उतने successful नहीं हो पाओगे, क्योंकि you will require time to find out what are the findings, what are the interpretation behind that particular table. Next, graphical form makes it possible to easily draw visual impression of the data. अब ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू आप लोग ईजी इंटरप्रेट कर पाते हो कि ये इमेज बोलना क्या चाह रहा है, एंड मेक योर इमेज इतना इफेक्टिव बनाओ अपना इमेज कि उस इमेज को देख के सामने वाले को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अल्टीमेटली वो इमेज देख के ही पूरा इंटरप्रेट कर ले कि वो इमेज बताना क्या चाह रहा है। Next, it is a time-consuming task to draw inferences about whatever is being presented on non-graphical form. So this is also clear to you all, I guess so, कि हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इफ़ वी गो फॉर नॉन ग्राफिकल फॉर्म, अगर हम नॉन ग्राफिकल फॉर्म जा रहे हैं तो रिजल्ट ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिसर्चर के लिए। एंड लास्ट, दिस मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी, सेक्स रेशियो, एज सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिसर्च है वो पॉपुलेशन फोकस्ड ही रहता है। तो टू स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, द सेक्स रेशियोज, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों को हम अगर एक इमेज के थ्रू बताएंगे, इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग अप्लाइड और इन विच ऑल एरिया यू कैन अप्लाई। सो ये सारे एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो। इट विल गिव यू अ मोर बेटर रिजल्ट, अ मोर बेटर इंटरप्रिटेशन। Coming to the general principles means points you should keep in mind while making a graph or a diagram. आपको कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अ ग्राफ। यहाँ पे आपको बता दूँ ये जो चीज़ें आप लोग स्कूल टाइम में पढ़ चुके हो, स्टिल आई एम मेकिंग यू रिकॉल थिंग्स। फर्स्ट इज़ इन अ ग्राफ देर आर 2 लाइन्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक ग्राफ में 2 लाइन होते हैं जिसको अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। एक आपका एक्स एक्सिस होता है विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एक आपका वाई एक्सिस होता है विच इज़ योर वर्टिकल लाइन। तो दैट सेम इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन।
आपके दो एक्सिस होते हैं, वन इज़ एक्स एंड वन इज़ वाई। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो आपका अपवर्ड लाइन होता है, दैट इज़ वर्टिकल लाइन। और ये जो एक्स और वाई एक्सिस है वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ ज्वाइन करते हैं, जहाँ मीट करते हैं, वो होता है पॉइंट ओ, दैट इज़ ओरिजिन, उसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, जो भी अपना एक्स एक्सिस है, जो अपना एक्स एक्सिस मतलब जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर जितने भी वैल्यू आएंगे एक्स एक्सिस की वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, और वही एक्स एक्सिस के नीचे जितने भी वैल्यू आएंगे एक्स एक्सिस से वो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे। सेम आपका वाई एक्सिस में भी, जो वाई एक्सिस है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन गई है, जो वाई एक्सिस है आपका, उसका भी सेम फंडा, उसके राइट हैंड साइड वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वाई के वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आने चाहिए। और सेम जो लेफ़्ट साइड आएंगे, मतलब वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड आएंगे, वो सारे होंगे आपके नेगेटिव वैल्यूज़। सो ये एक नॉर्मल ग्राफ का पैटर्न है, बनाने से पहले अपन को ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस इज़ something you have already learned in your school time, and last point is written, it should have a title, legend और labeling. So ultimately ग्राफ सिर्फ ऐसे बनाने से नहीं होगा, हमको उसमें एक्सेस टाइटल देना पड़ता है। वो टाइटल क्या शो कर रहा है हमको बताना पड़ता है कि वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, एज शो कर रहा है, जेंडर शो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ हमको बतानी पड़ती है। फिर फ्रीक्वेंसी है कि परसेंटेज है, वो सारी चीज़ भी हमको अपन को शो करना रहता है रिसर्च के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में।